Hello students, myself Rajesh Kukreti from Ekam classes. Today's our topic is cell. Now, firstly we should clear the meaning of cell. The cell word coming from Latin word cellula. It means little room. Now, cell is the smallest unit of living being, basic structure and functional unit of living organism also. ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है क्योंकि सेल के ही अंदर सारी मेटाबॉलिक जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सब परफॉर्म सेल के अंदर होती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. नाउ द वी क्लासिफाइड सेल, जब हम सेल को क्लासिफाइड करते हैं तो देयर आर द टू टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेल नंबर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर दो सेल्स contain only single cell, जो अपने पास single cell लगता है and the single cell perform all activity of the cell. On the other hand multicellular having a division of labor, इसमें division of labor होता है. Specific cell और tissue perform a specific function. Specific cell और tissues अपना क्या करते हैं, अलग अलग specific function perform करते हैं. Now the fourth point, type of cells. There are two type of cells mainly, prokaryotic and eukaryotic. Pro means primitive. Those cells having a primitive nucleus, well developed nucleus नहीं होता जिनका, जैसे कि बैक्टीरिया. These are prokaryotic cells. And those eukaryotic cells, those cells which are having a true nucleus, जो अपने पास true nucleus, advanced nucleus रखते हैं, जैसे कि plant and animal cells having true nucleus, तो we can say eukaryotic cells. ओके, फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. सेल को स्टडी करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन कंटेन टू इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. एंड न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म. फर्स्टली न्यूक्लियोलस. Nucleus contain nucleolus. Nucleolus, the main function of the nucleolus, the organization of the RNA, ribose nucleic acid, and the chromatin material play a role of genetic material. It play an important role for the transmission of the hereditary material from the one generation to the next generation. Now the nucleoplasm. Nucleoplasm is a fluid within the nucleus. Then complete nucleus complete to a cytoplasm, and a cytoplasm contain biomolecules and cell organelles. Important cell organelles such as the mitochondria, endoplasmic reticulum, vacuoles, chloroplasts, etc. These all are floating within the cytoplasm. Now, sixth point, the living fluid of the cell is protoplasm. अगर प्रोटोप्लाज्म को समझना है तो हम बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. We can say it is protoplasm. Now, important function of cell. Cell provide support and structure of the body. Body को supporting structure जो provide कराता है वो सेल ही कराता है. सेल जब ग्रो करता है तो बॉडी भी ग्रो करती है, तो हम कह सकते हैं फैसिलिटेट ग्रोथ बाय द माइटोसिस. Now, it is also help in reproduction. During the reproduction we know that the germ cells are involved. Male germ cells, sperm, female germ cell, ovum. Now the cell, fourth point, cell provide energy. During the cellular respiration, cell provide energy and allow the transport of the substance. तो दोनों फंक्शन, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्टेशन करना, दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन परफॉर्म कराता है, सेल ही परफॉर्म कराता है. Discovery history of cell. Now, firstly, Robert Hooke 1665 discovered cell in cork cell. Cork cell is a dead cell. It is obtained from the bark of the tree. He observed under the self-made microscope. इन्होंने अपने द्वारा खुद ही माइक्रोस्कोप डेवलप किया और उसके अंडर इन्होंने कॉर्क सेल, डेड सेल को ऑब्जर्व किया और अपना ये वर्क इन्होंने पब्लिश किया माइक्रोग्राफिया बुक में, जो खुद इनके द्वारा रचित थी, लिखी थी इन्होंने. सेकेंडली, एंटोन वॉन लीवेनहॉक 1674, ये एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे. इन्होंने
माइक्रोस्कोप की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया और इन्होंने फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में फर्स्टली ऑब्जर्व किया। साथ ही साथ आफ्टर दैट इन्होंने स्पर्म ऑफ रैबिट, हॉर्स, इन सब के स्पर्म्स को भी अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। थर्ड पॉइंट आपका है 1831 में स्कॉटिश बॉटनिस्ट जो थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस प्लांट सेल में। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं 1839, J.E. पुरकिंजी एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे ये, इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई प्रोटोप्लाज्म, जिन्होंने बोला ये सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस है इनसाइड द सेल वो है प्रोटोप्लाज्म, उसको इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया। फिफ्थ पॉइंट आपका है 1866 में हैकल, इन्होंने न्यूक्लियस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि न्यूक्लियस ही एक ऐसा पार्ट है सेल का जो स्टोर करता है और ट्रांसमिशन करता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इन 1838 जेकब मैथायस किल्डन, इन्होंने ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट प्रपोज अपने एक आइडिया इन्होंने जो दिया, इन्होंने बोला जितना भी प्लांट सेल है, प्लांट है वो अपने पास कंसिस्ट करता है सेल, वो सेल से बना हुआ है। उसके बाद 1839 में इनके समकालीन थियोडेंडो सैचुअन जो जर्मन, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों ही किससे बने हैं, सेल से बने हुए हैं। इन दोनों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ज्वाइंट फाइंडिंग से ही क्या बना, सेल थ्योरी का बेस बना, सेल थ्योरी, एक सेल थ्योरी तैयार हुई। फिर उस सेल थ्योरी को रिफाइन किया गया 1855 में आर विर्चो द्वारा। इन्होंने एक स्पेशल पॉइंट निकाला इन दोनों के कंक्लूजन से। इनका कंक्लूजन ये था, एक एमॉर्फिज्म भी बोला जाता है, सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल की जो ओरिजिनेशन है, उसकी उत्पत्ति है, वो पहले से जो एग्जिस्ट सेल है उससे होती है, स्पॉन्टेनियसली जनरेशन कोई भी नहीं होती है। आर विर्चो रिफाइन सेल थ्योरी, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स थे, तो इनकी सेल थ्योरी जो थी उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका था ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। जितना भी लिविंग क्रिएचर है, वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सेल और सेल प्रोडक्ट से क्रिएट हुआ है, बना है, कंपोज्ड हुआ है। सेकेंड पॉइंट जो इसका बोलता है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सेल। जितनी भी सेल के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, वो एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, टोटल वो सब सेल के अंदर ही परफॉर्म होता है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है। थर्ड पॉइंट है आपका पोस्टुलेट्स का, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली, नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली और डी नोवो बट इट कम्स फ्रॉम डिवीजन ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल। इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको एक फेमस लैटिन का एपोफिज्म है, ओमनिस सेलुलई अ सेलुलर। इट मीन्स ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं वो पहले से जो सेल एग्जिस्ट करता है उससे उनकी उत्पत्ति हुई है। कोई भी सेल अचानक से अपने आप डिनोवो, मतलब है अपने आप स्वतः ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ना ही लैब में बना है, बट इट कम्स फ्रॉम डिवीजन। एग्जिस्ट करने के बाद वो डिवाइड होता है और आगे मल्टीप्लाई होता है। फोर्थ पॉइंट आपका कहते हैं पोस्टुलेट्स का, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबकी जो स्टार्टअप होता है वो सिंगल सेल से होता है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन में आप देखेंगे मेल सेल एंड फीमेल सेल बोथ आर फ्यूज्ड, फर्टिलाइजेशन एंड बिकम अ जायगोट, सिंगल सेल, तो एक सिंगल सेल फॉर्म्ड होता है। तो सिंगल सेल से ऑल लाइफ क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो ये थी 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स रिफाइंड सेल थ्योरी ऑफ द आर विर्चो। इसमें एक एक्सेप्शन केस है, दिस थ्योरी ये इंप्लीमेंट किस पे नहीं होती, वायरस पे। वायरस आर द एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी बिकॉज वायरस परफॉर्म अ 2 मोड ऑफ लाइफ, 2 तरह से जीवन को जीता है, एक तो नॉन लिविंग फॉर्म में और एक लिविंग फॉर्म में। जब वो नेचर में रहता है तो नॉन लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे ही हॉस्ट सेल के अंदर जाता है लिविंग हो जाता है, उसके सेल को में काबू करके अपना कार्य